Hello everyone and welcome back to the Finch shows. I Kiran. So we are dealing with vocabulary. So we'll learn more new words and it is useful for all defense examination and competitive examination. This series is really very helpful because we will cover only the important word which are necessary for us to crack any examination. All right. So here we go. So the first word is apogee. Right, this word you might have heard in your geography too. See, apogee means क्या होता है? Most successful part of something. Right, किसी भी चीज़ का बहुत successful part is known as apogee. हाउ वी कैन रिलेट दिस वर्ड राइट. ऐप मतलब कुछ ऊपर साइड होता है ना, तो वैसे ही एपोजी मीन्स मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग. ओके, सो सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड वुड बी द टॉप पोजीशन और एपेक्स. एट द एपेक्स बोलते हैं ना, और नीचे की चीज़ को क्या बोलते हैं? बॉर्डर बोलते हैं. एट द एपेक्स मीन्स एट द हाइएस्ट पोजीशन. ऑल राइट, एंटोनिम इज बॉटम एंड लो. ओके, बॉटम एंड लो इज द एंटोनिम ऑफ एपोजी. Okay. See the example. Some people may argue that the apogee of human intelligence was when humans were not so reliant on technology. Means the human intelligence was when some people argue that when the apogee of human intelligence was when human were not so reliant on technology. ठीक है, तो apogee here signifies कि most successful part of something. All right. So moving toward the next word, it is apoplexy. ठीक है, अब मैंने इसे कैसे रिलेट करा है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती तो ठीक है, वो क्या क्रिएट कर देती है? एंगर क्रिएट कर देती है. राइट, तो एपोप्लेक्सी क्या होता है? एक्सट्रीम एंगर. ठीक है, एक्सट्रीम एंगर विच कैन डैमेज आर सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज एपोप्लेक्सी. ठीक है, जब एक्सट्रीम एंगर आना. ओके, सिंपली वी कैन से डेट which can destroy our brain system, so our activities will be hampered. Okay, तो apoplexy means क्या होता है? Extreme anger. Synonym is annoyed. All right, so what would be the antonym? Composed, calm, self-contained. Contain यहाँ क्या है? Satisfied. All right, so let's form an example. Apoplexy is often disadvantageous to one's behavior. ठीक है, apoplexy is often disadvantageous to one's behavior. ठीक है, हम कहते हैं ना गुस्सा खुद के लिए हानिकारक होता है. सेम वे apoplexy, ठीक है, apoplexy क्या है? एक्सट्रीम एंगर विच कैन डैमेज आर सीवियर सिस्टम, और सिंपली कैन से विच कैन डिस्ट्रॉय आर ब्रेन. ऑल राइट, सो नेक्स्ट इट इज apostasy. See friend, apostasy here is the act of giving up religious belief. That you're not talking about something which is related to religion and all. Okay, synonym would be abhor. Antonym is acceptance. You are accepting the religion. Take the act of religion and beliefs. All right, let's see an example. It is almost impossible for an Indian to follow apostasy. ठीक है, it is somewhat impossible for an Indian to follow the act of giving up religious or belief. Right, simply हमें समझना है apostasy means क्या है? Act of giving up religious belief. ठीक है, so next word is apostosis. सी फ्रेंड, अपोस्टेसिस क्या होता है ना? बेस्ट पॉइंट इन समवन्स लाइफ. ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल कि कोई कुछ अचीव करना चाहता है एंड ही अचीव दैट. नाउ ही इज कंटेंटेड. ओके, आई वाज thinking that I'll achieve this is in my bucket list. Okay, so at that point, it is the best point in someone's life is known as apotheosis. Okay, so synonym would be glorification and which is perfect in nature. ठीक है, perfect क्या चीज़ होती है? जो कोई हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाती है, जो अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इज नोन एज परफेक्ट थिंग. ऑल राइट, ठीक है, सो एंटोनिम इज एडवर्सिफिकेशन. ठीक है, एडवर्स कंडीशन हम कहते हैं ना, इट इज़ एन एडवर्स कंडीशन मीन्स बहुत ही ख़राब कंडीशन थी. राइट, तो एडवर्स कंडीशन तो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है. ऑल राइट, सो वी कैन रिलेट लाइक दिस. ओके, सिनोनिम इज glorification and perfect. Let's form an example. Serving the country is my apotheosis. Right, we all want to join Indian Army. ठीक है, तो serving the country is my apotheosis means it's the best point in my life is known as the apotheosis. All right,
सो नेक्स्ट वन इज अ पीस. सी फ्रेंड, जैसे कि वर्ड ही बहुत पीस है ना, वैसे इसका मीन्स क्या होता है, टू सेटिस्फाई. ठीक है, अ पीस मीन्स टू सेटिस्फाई. ठीक है, टू पेसिफाई एंड कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, अब क्या है, संतुष्ट रहना. ठीक है, ऑल राइट. सो एंटोनिम वुड बी डिससेटिस्फैक्शन. किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलना इज नोन एज डिससेटिस्फैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म एन एग्जाम्पल. हिज अपीजिंग बिहेवियर इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड means his satisfying behavior is always appreciated. He is satisfied of everything what he gets or what she gets. All right, so next example is appellation. Appellation आपने सुना होगा कि appellation मतलब होता है किसी के आगे टाइटल, नेम, दिस ऑल आर appellation. ठीक है, synonym would be headings, antonym would be closing part. कोई भी स्टार्टिंग में जो चीज़ लग रही है ना, प्रीफिक्स वाली चीज़, वो क्या होती है, एप्लेशन होती है. जो कि एंड में कोई चीज़ लगती है ना, वो क्लोज होता है. राइट, क्लोजिंग चीज़ें होती हैं. आई होप इट्स प्रिटी क्लियर. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. हिज एप्लेशन टू द कंपनी इज अ ग्रेट असेट. मीन्स हिज heading or a title to the company is a great asset. Asset is something related to the property. All right, so next example is append. सी append मीन्स क्या होता है ना, जैसे कोई चीज़ आपने पूरी कर ली, इज़ अबाउट टू कंप्लीट, बट यू वांट टू एड समथिंग एट द एंड. ठीक है, तो जो वो एंड वाली चीज़ होगी ना इज़ नोन एज append. ठीक है, टू एड समथिंग टू द एंड. सिंपल सी फ्रेंड, कुछ चीज़ें क्या होती हैं ना, वर्ड में ही छुपी होती हैं. जैसे एंड है ना, कोई चीज़ एंड में लगाई जाए उसे क्या बोलते हैं, append बोलते हैं. दिस इज़ हाउ आई रिलेट. राइट, सो append to add something to the end of writing. Synonym is bibliography. देखो आपने असाइनमेंट बना, लास्ट में क्या लिखते हैं, समरी एंड बिब्लियोग्राफी. ठीक है, तो वो क्या है, append है. ऑल राइट, क्लोजर. क्लोजर मीन्स क्या है यहाँ पे, एन एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग समथिंग. सिंपल वन. सो एंटोनिम इज प्रीफेस. आई टोल्ड यू प्रीफेस चीज़ें क्या होती है जो हम आगे से लिखते हैं, एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं, प्रीफेस लिखते हैं. राइट, अबाउट द ऑथर आता है, दीज ऑल आर दी प्रीफेस. All right, so let's form an example. It is always advisable to append the hints to a mathematical problem. Simple one. Now let's see the next word. It is apportion. देखो apportion ना बहुत सिंपल वर्ड है. जैसे कि किसी चीज़ को शेयर करना, कोई पोर्शन किसी चीज़ को शेयर करना. ठीक है, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, कोई पोर्शन किसी चीज़ को शेयर करना इज नोन एज apportion. शेयरिंग ऑफ मनी और ब्लेम. अब मनी ही हम नहीं दे सकते, कुछ और भी चीज़ को, किसी चीज़ को अगर हम दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट इसका ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इज नोन एज अपॉर्शन. राइट, सिनोनिम इज डिस्ट्रीब्यूशन, एंटोनिम इज कंट्रीब्यूशन. देखो कंट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि ना कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है अ गिफ्ट ऑफ पेमेंट टू अ कॉमन फंड और कलेक्शन. देखो कलेक्ट हो रही है ना कोई चीज़ को, इसलिए कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका ऑपोजिट है. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, कोई चीज़ कलेक्ट हो रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट में ना कोई चीज़ कलेक्ट नहीं होती है, शेयर होती है. राइट, कोई चीज़ क्या होती है, शेयर होती है. इज नोन एज, हाँ वेर वी वर. ठीक है, अपॉर्शन. ऑल राइट, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड मैन वॉज अपॉर्टेड बिटवीन हिज टू सन. डिसीज मीन्स ही इज नो मोर नाउ. ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई है, शेयर हो गई है, अपॉर्टेंट बिटवीन हिज टू सन. ऑल राइट, नेक्स्ट इट इज़ जैनी. देखो जैनी ना कुछ ऐसा वर्ड है, स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग और अनकंट्रोल इन एन अम्यूजिंग वे. ठीक है, कुछ चीज़ अलग सी कर देना इज नोन एज जैनी. ठीक है, बिज़ायर. बिज़ायर मीन्स क्या होता है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एंड बोलते ना इसके बिज़ायर इफेक्ट आ गए हैं. ठीक है, इसके बिज़ायर इफेक्ट देखने को मिला है. सो एंटोनिम विच फैमिलियर मीन्स आप को पता था, ओके दिस विल हैपन. ठीक है, यू वर फैमिलियर अबाउट द थिंग. राइट, इज नोन एज द फेमिलैरिटी. बट ऑपोजिट क्या जाएगा, बिज़ायर, बिहेवियर, जैनी, स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग एंड अनकंट्रोल इन एन अम्यूजिंग वे. ठीक है, एक इसका इमोजी भी होता है, आई विल शो यू, आई हैव दैट इमोजी at the end. Okay, so zeal means क्या होता है ना, next word is zeal. This word I have repetitively covered in my previous classes too. If you haven't watched them, please watch them because you will get an insight. Right, so zeal means क्या होता है ना, great enthusiasm. Right, synonym would be passionate about something. So opposite का जाएगा careless, lethargic. Okay, so he ate the rest with a great zeal, with a great excitement he ate. All right,
सो नेक्स्ट वन इज जस्ट. जस्ट मतलब क्या होता है? ईगरनेस, enthusiasm, angry. नॉट एंग्री, इट इज़ एनर्जी. ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी. एंड इंटरेस्ट इज नोन एज जेस्ट. ठीक है, देखो कैसे याद कर सकते हैं ना, जेस्ट और झील ना थोड़ा सा सिमिलर हैं. और जैनी मतलब क्या होता है? देखो सब चीज़ क्या है ये, हमने जेड के 3 वर्ड पढ़े, जैनी, झील, ठीक है, एंड जीस्ट, सब एनर्जी से रिलेटेड हैं. ऑल राइट, सिनोनिम इज रेलिस. ओके, सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? ईगरनेस. ईगरनेस टू नो समथिंग. ऑल राइट, ईगरनेस नहीं होगा, ईगरलेस होगा फ्रेंड, क्योंकि ईगरनेस मतलब तो एनर्जी से फुलफिल है. ईगरनेस तो हमने इसका सिनोनिम पढ़ा था. ठीक है, एंटोनिम, ये हमें ध्यान देना है. ठीक है, हियर वी गेट कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन. तो ईगरलेस क्या होगा? एंटोनिम होगा. सो एग्जाम्पल, सी हैज़ लॉस्ट द जिस्ट फॉर लिविंग एनी मोर. अब कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़िंदगी में जीने के लिए. ठीक है, इज नोन एज जेस्ट. ठीक है, ईगरनेस. ईगरनेस नहीं रही ज़िंदगी में जीने का, इज नोन एज zest. Just an example, she has lost the zest of for living anymore. So friend, we have completed the vocabulary portion of today. Now there are some picture for you and you can associate it in a better way. See friend, देखो हम vocabulary ऐसे लर्न नहीं कर सकते हैं. ठीक है, so we have to associate it, we have to write it, then use it in our daily life. In this manner we can learn more words, right? So I have tried कि मैं आप लोग को ये पिक्चर के थ्रू कुछ अच्छा सिखा सकूँ. ठीक है, so what is the opposite of एपोगी या एपोजी? ठीक है, एपोजी का ऑपोजिट क्या होगा? मैंने बोला था एपोजी मीन्स क्या होता है? मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बॉटम पार्ट. ठीक है, देखो नैडर ना बहुत बार एग्जामिनेशन में एंटोनिम पूछा गया है. ठीक है, तो नैडर किसका ऑपोजिट हो जाएगा? कोई चीज़ टॉप मोस्ट है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नडार हो जाएगा, नैडर हो जाएगा. ठीक है, सो क्या क्या ऑपोजिट हो जाएंगे एपोजी के? नडार, नेडर, बॉटम, बेस. पैरिजी आपने पक्का सुना होगा ज्योग्राफी में. ठीक है, पास वाली चीज़ जो होती ना, पैरिसी. ठीक है, रॉक, बॉटम, अबाइस, फुट, मिनिमम. सी फ्रेंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आपको ये मगअप नहीं करना है, बस पढ़ना है. राइट, नेक्स्ट, व्हाट आर दी अदर वर्ड्स फॉर एपोलेक्सी? अदर वर्ड बोल रहा है. ठीक है, ऑपोजिट नहीं बोल रहा. अदर वर्ड मीन्स सिमिलर वर्ड. सो क्या क्या सिमिलर वर्ड होंगे? एपोप्लेक्सी. एपोप्लेक्सी क्या बताया था? एक्सट्रीम एंगर. देखो एक्सट्रीम एंगर आएगा ना, तो जब भी हमें एंगर आता है, वाई वी से कि वी मस्ट बी काम इन एवरी सिचुएशन, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन गेट डिसफंक्शन. राइट, इफ इट विल नॉट गेट ऑक्सीजन, सो व्हाट विल हैपन? इट विल नॉट एक्ट इन अ प्रॉपर मैनर. सो व्हाट ऑल कंडीशन वी विल सी? जब एंगर आता है तो जस्ट सी हाउ मच डिजीजेस यू आर हैविंग. स्ट्रोक हो जाता है, सीशर्स, अटैक. ठीक है, फिट. ठीक है, कन्वल्सन, शॉक, सर्वोवास्कुलर एक्सीडेंट, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, थ्रोम्बोसिस, पैरालिसिस एंड पैल्सी. सी फ्रेंड, दीज ऑल आर द डिजीज यू गेट्स in the gift if you have the anger. So be calm in nature. All right, so next one is apostasy. See friend, apostasy I told you the act of giving up religious belief. ठीक है, तो other word क्या हो जाएगा? defection. ठीक है, defection law आपने पढ़ा होगा 10th schedule, like this only. ठीक है, and next word is tergiversation. देखो tergiversation क्या होता है ना? to change side. ठीक है, अभी तुम किसी के साइड थे, अब किसी के साइड लेना, इज नोन एज टर्गिवर्सन. राइट, सो बेट्रेल करना. हेरेसी. हेरेसी मीन्स क्या होता है? ओपिनियन अपोजिट टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजन. ठीक है, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से अपोजिट बिलीव होना, ओपिनियन होना. ठीक है, डिसलॉयल्टी, लॉयल बिल्कुल नहीं होना. ठीक है, परफिडिटी. ऑल राइट, देन इट इज़ रिकरेंसी. रिकरेंसी मीन्स क्या होता है? रिफ्रेशमेंट, रिन्यूकेशन, फेटलेसनेस. देखो फेटफुल नहीं है. ठीक है, फेटलेसनेस. जितने भी नेगेटिव वर्ड है ना, ये सब इसके ऑपोजिट हैं, या सॉरी ऑपोजिट नहीं, अदर वर्ड हैं अपोस्टेसी के. ऑल राइट, नेक्स्ट, सी फ्रेंड, व्हाट कैन यू आइडेंटिफाई दिस फ्रॉम एग्जाम्पल? देखो हियर ही इज रीडिंग. ठीक है, हियर ही इज रीडिंग. नाउ हियर, यस दिस इज इट. देयर मीन्स ही इज हैप्पी नाउ. राइट, हियर he is happy now. So I told you about one word which is
apostrophes which is a best point in someone's life, ठीक है, बेस्ट पॉइंट होता है ना किसी की लाइफ में, इज नोन एज apostrophe. इसकी लाइफ में क्या है, पढ़ना और फिर रिजल्ट कुछ टॉपर टाइप होता है ना, वो वाला इसका apostrophe है, राइट. सो बेस्ट पॉइंट इन समवन लाइफ इज नोन एज apostrophe. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज अपीज. मैंने बोला था ना अपीज, जैसा कुछ पीस सा लग रहा है. सो इट मीन्स क्या होता है अपीज, आई टोल्ड यू टू सेटिस्फाई, ठीक है, कोई भी कंडीशन है, ओके आई एम सेटिस्फाई, ठीक है, इज नोन एज अपीज. टू पेसिफाई. ऑलराइट. सो what are the other words? These are assert, placid, mollify, soften होता है, I told you in my previous lecture, ठीक है, conciliate, propitiate, soothe, calm, quell and ail. See friend, what is your homework ना, कि you have to find it by yourself, ठीक है, you will get in a good manner. Next, what are the other word for appellation? देखो appellation means क्या होता है, किसी के आगे name, title, ठीक है, आगे वाली जो भी चीज़ें होती हैं ना इज नोन एज एपिलेशन. ऑलराइट. सो अदर वर्ड क्या जाएंगे एपिलेशन का, हम बोलते हैं ना डेजिग्नेशन क्या है इसकी, ठीक है, डिनोमिनेशन, टाइटल, नेम, मॉनिकर, एपिथेट, एपिलेटिव, कॉग्नोमन, हैंडल, लेबल क्या है इसका. दीज ऑल आर दी अदर वर्ड एंड सिमिलर वर्ड टू द एपिलेशन. ऑलराइट. सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज़ अपेंड. मैंने बोला था कि कोई चीज़ आपने पूरा असाइनमेंट कर लिया, अपना पूरा टास्क कर लिया, लेकिन अभी कुछ चीज़ ना लैकिंग बिहाइंड है, तो उस चीज़ को आप जोड़ देंगे एट द एंड, सो इट वुड कंप्लीट. ठीक है. सो अपेंड मीन क्या होता है, टू ऐड समथिंग एट द एंड ऑफ राइटिंग. ठीक है. तो जैसे कि बिब्लियोग्राफी लिखना, किसी चीज़ को क्लोज करना, ठीक है, आप इसको फिट कर दो तो क्लोज हो जाएगा ना, क्लोजर हो जाएगा. ऑलराइट. सो नेक्स्ट वन इज अपोर्शन. देखो कोई पोर्शन को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना इज नोन एज अपोर्शन. दिस इज हाउ आई रिलेट दैट थिंग्स. ओके. सो विथहोल्ड, ऑपोजिट क्या जाएगा, देखो विथहोल्ड करना इज ऑपोजिट, कीप अपने पास रखना, डिनाई, रिफ्यूज, कंबाइन. जैसे कंबाइन एंड कॉन्ट्रीब्यूट वाली चीज़ आएंगी ना, वो तो ऑपोजिट होंगी किसकी, अपोर्शन की, बिकॉज अपोर्शन मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ऑलराइट. कंबाइन क्या होता है, इकट्ठा करना, यूनाइट, ठीक है, मोनोपोलाइज, होल्ड, टेक, जॉइन. ऑलराइट. सो वी हैव कंप्लीटेड द वोकैबुलरी पोर्शन ऑफ आर. सो इफ यू लाइक दिस सेशन, so don't forget it, like it, share it and subscribe this channel. All right. And keep learning. Jai Hind. Thank you.